Hello students, in the previous lecture we have discussed the concept of personality, how its derivation or how it derived from persona words. Now in this lecture we are going to discuss the various determinants or we can say essential features of personality. Now let us start. The first one factor is the major determinant of the personality factors are studied under mainly for the four broader heads. First one is biological factor. The biological factors, it is the, we can say it is the study of biological contribution to personality, can be divided into mainly three major categories. दो बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जो करेक्टर होते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करते हैं, वो मेनली थ्री पार्ट्स में कैटेगराइज किए गए हैं. First one is heredity, second one is brain, and third one is physical features. Now discuss one by one. First one is heredity. First of all, we have clear what is heredity. Heredity is a character which are transmission from the parent cell to the daughter cell. जो करेक्टर जो जीन्स माता पिता से बच्चे में जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी करेक्टर बोलते हैं. लाइक एज आइज, हेयर कलर्स, हाइट, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, मेल है फीमेल है, फेशियल एंड सेक्स which belong to a particular sex. So we can say heredity is the transmission of qualities character from ancestor to descendant through a mechanism lying from primary in the chromosomes of the germ cell. Hereditary characters include physics, their gesture posture, their eyes color, their hairstyles, their attractiveness, their heights, their nervous system. Each parents normally 23 pair of chromosomes containing thousands of genes. We know very well all of them. Even two real brothers may have a different personality traits. These traits, physical states, facial attractiveness, sex, temperaments, etc., all inherited from one's parents. जबकि कहने का है इसमें, कहने का मतलब इवन जब दो सगे भाई भी होते हैं उनमें भी क्या होते हैं, करेक्टर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, जबकि वो एक पेरेंट्स के ही दोनों बच्चे हैं. वो उनका फिजिकल स्ट्रक्चर में हो सकता है, वो उनका फेशियल जो है टेम्परमेंट में हो सकता है, किसी भी सेंस में हो सकता है. नाउ सेकंड वन इज ब्रेन. The second biological factor is brain, which is supposed to play and shaping the personality. देखिए, each and every human being brain identify the uniqueness of their characteristics which are differ from individual to individual. Hence the brain of human being is divided into the two hemisphere. We know very well the human brain are mainly categorized into the two hemisphere. First one is left hemisphere and second one is right hemisphere. Left hemisphere which include which lies in the right side of the body. Left hemisphere lies in the right side of the body and right hemisphere which lies in the left side of the body. जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो राइट साइड की बॉडी में होता है, राइट हेमिस्फीयर वो लेफ्ट साइड में होता है. अब लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर में कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हमारे आते हैं इन रिलेटेड टू द ब्रेन. इफ यू टॉक अबाउट द लेफ्ट हेमिस्फीयर, it include speech, verbal, logical, mathematics, control, dominancy, worldly, active, reading, writing, naming. ठीक है, ये सब किस में आते हैं हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर में. जो है लिखने की तरीका, जो है बोलने का तरीका, एक्टिवनेस, देयर डोमिनेंसी, देयर कंट्रोलेबल, देयर मैथमेटिकल जो है कैलकुलेशन, ये सब हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर में होता है. इफ़ यू टॉक अबाउट द राइट हेमिस्फीयर, इट इंक्लूड स्पेशल, मस्कुलर, होलिस्टिक, इमोशनल, माइनर, स्पिरिचुअल्स, रिसेप्टिव एंड फेशियल रिकॉग्निशन. मतलब आपकी परसेप्शन, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, ये हमारे जो है बॉडी के राइट हेमिस्फीयर विच इज सिचुएटेड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी. नाउ नेक्स्ट वन इज, थर्ड वन इज फिजिकल फीचर. एज द नेम क्लियर, फिजिकल फीचर.
The third biological factor determine personality formation is physically characteristics and rate of maturation. Physical features includes height कितनी है, weight, color, facial appearance, etc. of an individual. Similarly, the rate of physical maturation also affect personality because persons of varying maturity are exposed to different physical and social situation and activities differently. Means जो फिजिकल फीचर होती है वो भी क्या होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है. वो हाइट की सेंस में हाइट कितनी है, एक बेटे की हाइट ज़्यादा है दूसरे की कम है, वेट एक का ज़्यादा एक कलर में थोड़ा जो है एक थोड़ा डार्कनेस है, एक थोड़ा मान लीजिए फेयरनेस है, ठीक है. और उसका फेशियल अपीयरेंस मान लीजिए हंसमुख है, एक थोड़ा सा डल चेहरा है, ठीक है. तो ये भी एक क्या है बायोलॉजिकल फैक्टर का ही पार्ट है. नाउ सेकंड इज फैमिली एंड सोशल फैक्टर. ये तो थे हमारे बायोलॉजिकल करेक्टर विच आर ट्रांसमिशन फ्रॉम द पेरेंट्स करेक्टर टू देयर डॉटर सेल. बाप से बेटे में जो आते हैं, पेरेंट्स से बच्चे में आते हैं. सेकंड वन इज फैमिली एंड सोशल फीचर. फैमिली एंड सोशल feature shape a personality through the process of socialization and identification. देखिए किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर में फैमिली और सोशल फैक्टर जो होते हैं वो बिल्कुल यूनिक होते हैं, डिफरेंट होते हैं. और वो डिपेंड करता है कि वो पर्सन कितना सोशलाइज है, सामाजिकरण कितना है, और कितना जो है फैमिली के साथ में उनके लिंक लाइजनिंग है, फैमिली के साथ में फैमिली के ट्रेट से कितने लिंक बिलोंग करते हैं. If we talk about the socialization start with the initial contact between mother and her new infant. After infancy, other members of the immediate family, father, brother, sister, close relatives and friends. Socialization means यहाँ पर क्या होगे कि उनके मदर के अलावा जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद में उसके पिता के साथ, उसके भाई के साथ में, उसकी बहन के साथ में उसका क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है. ये हमारे सोशलाइजेशन में होता है. सेकंड वन है इसमें सोशलाइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन था ना. आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट व्हेन ए पर्सन बिगन टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद सम ऑफ अदर मेंबर ऑफ द फैमिली. नॉर्मल ए चाइल्ड ट्राई टू कॉपिंग सर्टेन एक्शन ऑफ हिज पेरेंट्स, दैट इज कॉल्ड एज आइडेंटिफिकेशन. एट दैट केस क्या करता है, बच्चा जो है माता पिता के कॉपी करना स्टार्ट कर देता है. जैसे उन्होंने कुछ बोला उसी की दोबारा से उनको रिवाइज कर दिया, आओ क्या है ना. तो इन चीज़ों की कॉपी करना सीखता है वो, इससे उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन. नाउ वी डिस्कस द सोशलाइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस इज इन्फ्लुएंस बाई. जो ये किन किन चीज़ों से, किन किन फैक्टर से प्रभावित होता है सोशलाइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन. फर्स्ट वन इज होम एनवायरमेंट. होम एनवायरमेंट इंक्लूड चिल्ड्रंस, वार्म्स, लव, स्टिमुलेटिंग एनवायरमेंट. मीन्स जिस एनवायरमेंट में बच्चा रह रहा है वहाँ का कैसा एनवायरमेंट है. बिकॉज वी नो वेर टोटल होम एनवायरमेंट इज ए क्रिटिकल फैक्टर इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. फॉर एन एग्जाम्पल, चिल्ड्रन with markedly institutional upbringing on children in a cold, unstimulating home have a much greater potential than the children raised by parents in a warm, loving, मतलब बच्चा कैसे एनवायरनमेंट में रह रहा है, ठीक है, और कैसे उसकी जो है लविंग है, कैसा उसका अफेक्शन है, और एनवायरनमेंट उसको किस प्रकार से स्टिमुलेट करता है, वही उसमें यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते चले जाते हैं. Second one is family environment. Family members include parents and other family members have a strong influence on the personality development of the child. Parents have more effect on the personality development as compared to the other members of the family. बिल्कुल सही. जो फैमिली मेंबर होते हैं उसमें पेरेंट्स का एक अपना अहम रोल होता है बच्चे का पर्सनैलिटी को डेवलप करने में एज कम्पेयर टू द अदर फैमिली मेंबर्स. We can say the relationship between the parents and children was higher than that of the children and their teachers. If we talk about the comparison in between the children relationship with their parents or with their teachers, there is a lot of difference in between both of them. जो बच्चे का रिलेशनशिप है वो पेरेंट्स से हायर होता है कंपेयर देन द टीचर्स, क्योंकि टीचर्स में अब वो धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करता जा रहा है,
लेकिन पेरेंट्स का उसका जन्म से ही उनका नाता है और जन्म से उनका संबंध है। थर्ड वन फैक्टर इज सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप मीन्स वी कैन से besides a person, home, environment and family members, there are other influence arising from a social placement of the family, as the person is exposed to agencies outside the home, particularly the school, friend circle and the other work group। जैसे ही वो अदर ग्रुप में कांटेक्ट में आता है, लाइक स्कूल है, फ्रेंडशिप है या कॉलेज है, तो उसकी पर्सनैलिटी में अलग ही डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। और जैसा वो समाज के साथ में सीखता है वैसे ही वो अपने बिहेवियर में उसको मॉडिफाई करना सीख जाता है। दैट इज आल्सो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट वन इज कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर लाइक एज इंडिपेंडेंस, एग्रेशन, कंपटीशन, कोऑपरेशन। मीन्स जैसे माहौल में, जैसे कल्चर में वो रहेगा उसी के अनुसार ही अपने आप को मॉडिफाई करना सीख जाता है, कोऑपरेट करना सीख जाता है, कंपटीशन को कैसे फेस करना उसको सीख जाता है, इंडिपेंडेंस स्वतंत्र रूप से बनना। ठीक है, ये सब है क्या है, कल्चरल फैक्टर्स में हमारे आते हैं। नेक्स्ट वन इज सिचुएशनल फैक्टर। फोर्थ वन फैक्टर इज सिचुएशनल फैक्टर। सिचुएशनल फैक्टर मीन्स हेल्दी एंड अनहेल्दी, हैप्पीनेस और मीन्स इट मीन्स वो किस टाइप के एनवायरनमेंट में रह रहा है। एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी में चेंज इन डिफरेंट सिचुएशन like as healthy and unhealthy situation, circumstances, extents of happiness, sorrowness, etc. put deep effect on one's personality. The demand of different situation may call for different aspect of one's personality. ठीक है। And last one is the some other factor which are different from the below above four factors, like as characters। करेक्टर्स कैसा है, होनेस्टी, ईमानदार है, ट्रस्ट वर्दीनेस है। ठीक है। इंटरेस्ट कैसा है उसका काम करने का, चाहे वो स्कूलिंग एजुकेशन कर रहा है, चाहे वो जॉब कर रहा है, चाहे वो किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग ले रहा है, उसका कैसा क्या इंटरेस्ट है, कैसा क्या बिहेवियर है इन रिलेशन टू देयर टास्क। नेक्स्ट वन इज मोटिव। मोटिव मीन्स, मोटिव इज वी नो वेरी वेल, मोटिव इज वर्ड डायरेक्ट फ्रॉम द टर्म ऑफ मोटिवेशन। और मोटिव इज द इनर ड्राइव ऑफ द इंडिविजुअल और रेस्पेक्ट विच रेस्पेक्ट गोल्स एंड डायरेक्ट बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। कहीं ना कहीं क्या करता है वो किसी भी इंडिविजुअल की जो वंस पर्सनैलिटी है उसको यूनिकनेस शो करता है, उसकी पर्सनैलिटी को शो करता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।